Hi friends, this is my channel Miss Medico. I am with another video lecture of basic science of skin. If you want to subscribe my channel, please subscribe, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let's start with another video lecture of skin, that's basic science of skin. We all know that the skin is the largest, we can say, it is the largest organ of the body. We all know it's the largest organ of the body. Second largest is liver, but the first largest organ of the body is the skin. It accounts for about 15% of the total body weight. Means whatever it is total body weight, 15% is of skin. It constitutes 15% of the total body weight, and it performs many vital functions including protection against external environment, against chemical, physical and biological assailants, as well as prevention of excess water loss from the body. And skin plays an important role in thermoregulation, means maintenance of body temperature. So these are actually the importance or functions of skin we are going to discuss in physiology. Right now we have to focus on mainly what skin is made up of. It's made up of three layers. If we got the section of the skin, we can see that there are three layers. We have the epidermis, we have the dermis, and we have the subcutaneous tissue. So our skin is composed of three parts. We have the epidermis, we have the dermis, and we have the subcutaneous tissue, right? So the outermost, as you can see in this slide, this is a simple diagram as I made it. outermost layer जो है, जिसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस, इट कॉन्सिस्ट ऑफ, हम देखेंगे इसमें जो मेनली होती है कॉन्स्टलेशन ऑफ सेल्स, जिनको हम लोग केराटिनोसाइट्स बोलते हैं. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो एपिडर्मिस हमारा है दैट्स मेनली मेड अप ऑफ केराटिनोसाइट्स. What are they? We are going to discuss, but right now you just trust me that the outermost layer is called the epidermis, and it's made up of specific constellation of cells, and those cells are called what we call keratinocytes. So epidermis is mainly made up of keratinocytes. Now we are going to see what keratinocytes contain. They synthesize a very important protein that is called keratin. You all know the keratin is important for strengthening the skin, for regulating the growth of the skin, for wound healing and all that. So the keratin protein, which is main protein in our skin, in our nails, in our hair, so it's mainly synthesized by these cells that are present in epidermis. So keratinocytes function to synthesize keratin, which is a long thread-like protein with a protective role. So now the next layer is the dermis. As we can see, the next layer, this layer, the red वाली layer जो है वो dermis होती है. जो मिडिल लेयर होती है, इट इज़ फंडामेंटली मेड अप ऑफ फिब्रिलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नोन एज कोलेजन. ये कोलेजन की बनी होती है. और डर्मिस जो है वो लाई करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू पे. आप खुद ही देख पा रहे होंगे, अभी मैं फिगर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये ड्रफ डायग्राम है इसमें मेनली दिखता है कि डर्मिस जो है वो लाई करता है कहाँ पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे. और पैनिक्यूलस, ये जो है ना सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसका जो दूसरा नाम है इसको हम लोग पैनिक्यूलस भी बोलते हैं. पैनिक्यूलस कंटेन्स द स्मॉल फैट लोब्स ऑफ फैट सेल्स, जिनको हम लिपोसाइट्स बोलते हैं. फैट सेल्स होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में. मैं आपको मॉडल पे दिखाऊंगी कि फैट सेल्स जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होती है.
अब जो ये हमारा स्किन है उसकी जो ये लेयर्स होती है ना, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसका जो थिकनेस है वो वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिक लोकेशन ऑन द एनाटमी ऑफ द बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पपोटा है जिसको आईलिड बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। आप खुद ही चेक कीजिए आईलिड को, आप देखिए कि एपिडर्मल लेयर जो है वो कितनी थिन होती है, 0.1 mm, बहुत पतली होती है एपिडर्मिस हमारे आईलिड्स में। लेकिन हमारे जो पाम्स एंड सोल्स होते हैं फीट पे, उनका हाइएस्ट हैव थिकेस्ट एपिडर्मल लेयर होती है, जैसे 1.5 mm। तो 0.1 mm जो थिनेस्ट होती है एपिडर्मल लेयर वो आईलिड में होती है, और 1.5 mm जो एपिडर्मल लेयर होती है वो सोल्स एंड पाम्स में होती है, बहुत थिक एपिडर्मल लेयर होती है। और जो डर्मिस होती है वो थिकेस्ट बैक पे होती है, वायर इट इज़ 30 to 40 टाइम्स एज थिक एज ओवरलाइंग एपिडर्मिस। मतलब कि डर्मिस जो है वो थिकेस्ट होती है बैक पे, बैक पे जो है वो डर्मिस बहुत थिक होती है और 30 to 40 टाइम्स थिकर होती है। नाउ हम इस पहली लेयर को उठाएंगे जिसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस। जो स्किन जो है जब हम उसको सेक्शन करेंगे तो पहला जो लेयर नज़र आएगा वो होता है एपिडर्मिस। ये मॉडल पे देख रहे हैं, मॉडल में 3D मॉडल दिखाऊंगी, ये वाला जो पार्ट है इतना सा, ये है एपिडर्मिस। फिर उसके बाद जो डर्मिस है, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी हाइपोडर्मिस। ये पूरा जो है डर्मिस जो है वो पैपिलरी लेयर होती है, रेटिकुलर लेयर, मेनली कोलाजन का बना होता है डर्मिस। और जो ये सेल्स होती है यही लाइपोसाइट्स होती है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में पाई जाती है। और हमारी जो मेन फोकस है इस लेक्चर में वो है एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली लेयर होती है। तो मैंने वही कहा वो केराटिनोसाइट्स का बना होता है एपिडर्मिस। तो मेनली ये सेल्स जो होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ही प्रोटेक्शन करता है बॉडी में। दैट्स कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। मेनली जो एपिडर्मिस है इसमें 2 तरह की सेल्स होती है, एक केराटिनोसाइट्स होती है, एक डेंड्राइटिक सेल्स होती है। यहाँ पे मैं अभी नहीं दिखाऊंगी ये सेल्स, आगे चल के दिखाएंगे। फॉर ए वाइल मेनली जो सेल्स होती है एपिडर्मिस की वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, और मेन 2 सेल्स होती है वहाँ पे, केराटिनोसाइट्स होती है और डेंड्राइटिक सेल्स होती है। केराटिनोसाइट्स डिफर फ्रॉम क्लियर डेंड्राइटिक सेल बाय पोजेसिंग इंटरसेल्यूलर ब्रिड्जेस। केराटिनोसाइट्स जो है वो डेंड्राइटिक सेल से डिफर करती है क्योंकि केराटिनोसाइट्स जो है वो इंटरसेल्यूलर ब्रिड्जेस बनाते हैं, 2 सेल्स के दरमियान ब्रिड्ज पाए जाते हैं जिसको हम डेस्मोसोम बोलते हैं। और इसमें जो है एम्पल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है केराटिनोसाइट्स में, वो जो कि स्टेनेबल होता है। एपिडर्मिस हार्बर्स ए नंबर ऑफ अदर सेल पॉपुलेशन, जैसे इसमें मेलानोसाइट्स होती है, इसमें लैंगरहन सेल्स भी पाई जाती है, मर्कल सेल्स। लेकिन बट द केराटिनोसाइट्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स, बाय फार जो है केराटिनोसाइट्स मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होती है। ये हमने एपिडर्मिस जो है उसको हिस्टोलॉजिकली कि कितनी लेयर्स होती है एपिडर्मिस में, क्या क्या सेल्स होती है, मैंने मेनली कहा था कि हमारा जो एपिडर्मिस है आप देखिए मेनली किस सेल का बना होता है। ये हम दूसरे कलर से दिखाएंगे ताकि मोर आपको नज़र आ जाए। ये जो है ये मेनली जो है केराटिनोसाइट्स होती है, हमारे जो एपिडर्मिस होता है केराटिनोसाइट्स। और भी सेल्स जैसे मेलानोसाइट्स होती है, ये वाली सेल जो है ये मर्कल सेल है, मर्कल सेल। ये वाली जो है लैंगरहन सेल है यहाँ पे। तो लेकिन आप देख रहे होंगे खुद स्लाइड में, देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे कि केराटिनोसाइट्स ही नज़र आ रही है सब जगह। मीन्स जो केराटिनोसाइट्स है वो मेन सेल्स है, और डेंड्राइटिक सेल्स भी होती है, लेकिन मेन जो है केराटिनोसाइट्स ही हमारे एपिडर्मिस में पाई जाती। तो एपिडर्मिस होता क्या है एक्चुअली, ये होता ही है केराटिनोसाइट्स का लेयर जो है। अब जो कितनी लेयर्स होती है वो फिर केराटिनोसाइट्स जो है फिर डिफ्रेंशिएट होती है, वो टॉप पे चली जाती है, वो मैं आगे कहूँगी। केराटिनोसाइट पहले हम लेंगे। केराटिनोसाइट जो कि मैंने ये सेल दिखाई यहाँ पे, इसको हम लोग स्टडी करेंगे होती क्या है। इसको हम कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं। और द सेल्स दैट कंप्राइज द मेजॉरिटी ऑफ द एपिडर्मिस,
मैंने कहा ना, मेजॉरिटी ऑफ एपिडर्मिस जो है वो बना ही है केराटिनोसाइट्स का। केराटिन फिलामेंट्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ केराटिनोसाइट्स। इनमें केराटिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं और प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और यही स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कितने तरह के केराटिन फिलामेंट्स होते हैं? 2 तरह के, एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं। एसिडिक को टाइप 1 जो कि केराटिनोसाइट 10 to 20 होते हैं, और बेसिक जो है टाइप 2 कहलाते हैं। K1 to K10 जो है वो बेसिक ही होते हैं। They both must be expressed for a keratin filament to develop. ये जो जितने भी यहाँ पे केराटिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक्सप्रेस होने चाहिए, तभी केराटिन फिलामेंट डेवलप होता है। इन अदर वर्ड्स, एसिडिक टाइप एंड बेसिक टाइप आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड टुगेदर एंड फॉर्म a keratin filament together. Keratinocytes are born at the base of epidermis at the dermoepidermal junction. मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन होती है, यहीं पे केराटिनोसाइट जो है इसका ओरिजिन होता है। तो वेयर द केराटिनोसाइट गेट्स ओरिजिनेटेड, इट गेट्स ओरिजिनेटेड एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, दे आर प्रोड्यूसड बाय स्टेम सेल्स। वहाँ पे स्टेम सेल्स होती है विच आर आल्सो कॉल्ड बेसल सेल्स। वहाँ से ये सेल्स डेवलप होती है बिकॉज दे रिजाइड एट द बेस। स्टेम सेल से केराटिनोसाइट आती है जिसको हम बेसल सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको बेसल सेल? क्योंकि ये बेस पे लाई करते हैं। ये जो हमारा डर्मिस जो है यहीं पे केराटिनोसाइट डेवलप होती है, और यहीं से जो है केराटिनोसाइट जो है फर्स्टली बेस पे जो है जो डेवलप होती है उनको हम स्टेम सेल्स एक्चुअली ये होती है, या इनको बेसल सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बेस पे लाई करती है। The basal layer of the epidermis, because they reside at the basal layer of epidermis. When stem cells divide, they create daughter cells. ये जो स्टेम सेल्स होती है नीचे डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे, जब ये डिवाइड होती है तो ये डॉटर सेल्स बनाती है। फर्दर फिर इनकी मैचुरेशन होती है एंड माइग्रेट, स्लोली माइग्रेट एट द टॉप ऑफ एपिडर्मिस। और यही सेल्स जो बनती है ना, ये टॉप पे चली जाती है फिर। And this process of daughter cell maturation and moving at the top is called keratinization. देखिए मैंने कहा कि जो ये केराटिनोसाइट्स होती है एक्चुअली ये स्टेम सेल से आती है। जो स्टेम सेल्स होती है वो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन यानी बेस पे होती है, इसलिए इनको स्टेम सेल्स को बेसल सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बेस पे होती है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे। फिर ये डिवाइड होती है स्टेम सेल्स और बनाती है फर्दर छोटी छोटी सेल्स जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। फिर ये डॉटर सेल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं और मैच्योर भी हो जाते हैं और टॉप पे चले जाते हैं। और जब ये टॉप पे मूव होते हैं, इस सारी प्रोसेस को कि स्टेम सेल से डॉटर सेल्स बनना, डॉटर सेल्स का मैचुरेशन होना और फिर टॉप पे मूव करना, इस सारे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं केराटिनाइजेशन। सो व्हाट इज केराटिनाइजेशन? इट्स द स्लोली मूविंग ऑफ द केराटिनोसाइट्स विच आर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द dermoepidermal junction, and the slow migration at the top of the epidermis of the keratinocytes is called keratinization. As these cells progress through the epidermis and mature, they develop different characteristics. जैसे जैसे ये सेल्स टॉप पे चली जाती है और मैच्योर होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाते हैं। द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस आर नेम्ड फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स फॉर एग्जाम्पल, और इन लेयर्स को हम नाम देते हैं। अब चूंकि ये लेयर्स मैच्योर होती है तो उनका नाम तो वही नहीं रहेगा, इनका काम भी डिफरेंट हो जाता है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स डेवलप करते हैं, तो इनका नाम भी बदल जाता है। एज मैंशनड, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लेयर जो है वो बेसल लेयर होती है। इस लेयर को स्ट्रैटम बेसेल बोलते हैं क्योंकि ये लोकेट होती है एट द बेस ऑफ द एपिडर्मिस। बेसल सेल्स जो है वो क्यूबाइडल होती है। यहाँ पे जो बेसल सेल्स होती है ना, ये क्यूबाइडल होती है क्योंकि ये रेजाइड करती है बेस ऑफ द एपिडर्मिस पे, इसीलिए इसका नाम स्ट्रैटम बेसेल रखा गया। नेक्स्ट लेयर जो होती है उसको हम स्पाइनस लेयर, होती तो केराटिनोसाइट ही होती है, लेकिन ये मैच्योर होने के बाद जो है इसमें स्ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है स्पाइनस लेयर नाम रखा गया। बिकॉज इन दिस लेयर द सेल्स हैव प्रोमिनेंट स्पाइनी अटैचमेंट्स, दे आर कॉल्ड डेस्मोसोम्स। स्पाइनोसोम जो लेयर होती है इसमें सेल्स के जो है वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो आप स्पाइन जैसे होते हैं, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स
जो आपस में अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती है, और उन अटैचमेंट्स को हम नाम देते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, मैं आपको डेस्मोसोम दिखाऊंगी। ये एक केराटिनोसाइट होती है, दूसरी केराटिनोसाइट होती है। यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होती है, इसमें कुछ डेवलप हो जाते हैं, कुछ एडहीजन्स जो है डेवलप हो जाते हैं, और इन एडहीजन्स को हम लोग डेस्मोसोम्स नाम देते हैं। एक्चुअली होता है ये प्रोटीन ही होती है, लिंकर प्रोटीन कैडहेरिन होता है। और यहाँ पे फिलामेंट्स दिखाए गए, केराटिन फिलामेंट्स, जो कि हमारी केराटिनोसाइट्स डेवलप करती है। वही कहता है डेस्मोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ एडहीजन मॉलिक्यूल्स एंड अदर प्रोटीन्स एंड आर इंटीग्रल इन सेल एडहीजन एंड सेल ट्रांसपोर्ट। तो सेल एडहीजन और सेल ट्रांसपोर्ट के लिए कि जो स्किन में जो सेल एडहीजन आपस में होती है, वो इन डेस्मोसोम्स की वजह से ये होते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी इन्हीं की वजह से। एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, कैडहेरेंस होते हैं, जो कि सेल को, एक सेल को दूसरी सेल से अटैच करते हैं। तो ये था स्पाइनस लेयर, जिसमें मेन हमने देखा कि स्पाइनस, प्रोमिनेंट स्पाइनस पाए जाते हैं, इसलिए स्पाइनस लेयर कहते हैं। तो स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो है इसके बाद, उसके बाद जो लेयर पाई जाती है वो है ग्रैन्युलर लेयर। नेम क्यों, इसका क्यों नाम पड़ा ग्रैन्युलर लेयर? बिकॉज दे सेल्स कंटेन विजिबल केराटोहाइलाइन ग्रैन्यूल्स। इस सेल का नाम इसलिए नाम पड़ा ग्रैन्युलर लेयर, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते, केराटोहाइलाइन ग्रैन्यूल्स। ये आपको देख रहे होंगे कि केराटिनोसाइट्स जो है वो मूव अप कर रही है एज द एज, जितना जितना इनका मैचुरेशन होता है तो ये टॉप पे चली जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। तो लेयर जो है, लास्ट लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, लास्ट में बच जाती है एससी। एससी जो होती है वो स्ट्रैटम कोरिनियम होती है। वो कंडेंस्ड मास ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियर और ग्रैन्यूल्स। फिर जब ग्रैन्युलोसा स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम के ग्रैन्यूल्स लॉस हो जाते हैं, फिर वो कंडेंस्ड मास ऑफ सेल जो लास्ट पे रह जाती है, उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, ये स्ट्रैटम कॉर्नियम, ना इसमें न्यूक्लियर है ना कुछ और चीज़ें, बिल्कुल कंडेंस्ड मास ऑफ सेल्स है जो लास्ट में लाई करती है, टॉप पे लाई करती है। तो यहाँ पे हेयर है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रैटम कॉर्नियम है जो ऊपर वाली लेयर है, जिसमें न्यूक्लियर लॉस हो गया है, जिसमें ग्रेन्यूल्स लॉस हो गए हैं, कंडेंस्ड मास ऑफ सेल जो है वो आउटर लेयर होती है। फिर उसके बाद ये मैंने ऊपर नाम नहीं लिया, ल्यूसिडम भी होती है। ल्यूसिडम ज़्यादा नहीं पाई जाती है, लेकिन ल्यूसिडम तो होती है कहीं कहीं पे। आई डोंट नो रिमेंबर दिस टाइम वेयर इट इज़ एक्चुअली, बट होती है। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम मैंने कहा इसमें केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स होती है। स्पाइनोसम इसमें डेस्मोसोम्स होती है, अटैचमेंट्स आपस में प्रोमिनेंट स्पाइनस जो कि डेस्मोसोम्स कहलाए। बेजेल जो है वो लाई करती है एट द बेस ऑफ द एपिडर्मिस, एक्चुअली एट द डर्मा एपिडर्मल जंक्शन। ये वाला जो है फिर स्पैशियस ग्लैंड्स, एरेक्टर पैले, और ये जो सारा है डर्मिस है। ठीक है, तो इन एपिडर्मल लेयर्स को ऑफ द the epidermal layers of thick skin starts from the most superficial layer and और देखिए स्ट्रैटम कोरिनियम हमने देखा, स्ट्रैटम ल्यूसिडम हमने देखा, स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम हमने देखा, स्ट्रैटम स्पाइनोसम हमने देखा, और स्ट्रैटम बेजेल। अब ये रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत आसान निमोनिक बनाया है, जो कि मैंने यूट्यूब पे देखा था और मैंने गूगल पे भी देखा था। तो यू कैन easily remember the layers of epidermis by using the acronym CUM. Let us get sunburned. CUM, stratum corneum, letters L for lucidum or G for granulosum, S for spinosum, B for basal. So हमें आज याद रहा CUM, let us get sunburned, मतलब कि corneum, L for lucidum, G for granulosum, S for spinosum and B for basal, burn B. So हमें याद रहा layers of epidermis, आपसे हमें कभी नहीं भूलेगा काम, let us get sunburn. तो ये था epidermis. अब हम इन layers को one by one डिस्कस करेंगे. I hope you like my videos. If you have any query, comment in the comment section so that I will improve. Thank you so very much.